Student, today I am going to start second concept, that is the function. Recapitulations before start the function. Recapitulation is definition or define the function, domain, codomain, range, image and pre-image. So first I would like to explain the definition of the function. Suppose let A and B be two non-empty sets. If there is a rule, let A and B two non-empty sets. Suppose this one set A, this one set B. And if there is a rule under which each element of A associated with the unique element of B, then this rule is known as the function from A to B. Suppose A is the element A having element 1, 2, 3, 4 and B 2, 4, 6, 8, and the rule is fx equal to 2x. Then f1 is associated with the 2, 2 is associated with the 4, 3 associated with the 6 and 4 associated with the 8. So this is the function. Means the function is a rule under which each element of A associated with the unique element of B. Then this rule is known as the function from A to B. Here A is the domain and B is the codomain. The set A is domain and the set B is the codomain. Second, there is the range. Range is the set of all images, set of all images, that is 2, 4, 6, 8, that is B. In this situation, we see codomain and domain both are the same. इसमें देखो डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता है. कभी कभी डोमेन और कोडोमेन सॉरी डोमेन और रेंज दोनों भी देखो दोनों सेम है, कभी कभी दोनों डिफरेंट भी हो सकता है. तो ये फर्स्ट हो गया डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इमेज. हियर 2 is the image of 1, 4 is the image of 2, 6 is the image of 3 and 8 is the image of 4. And 1 is the pre-image of 2, 1 is the pre-image of 2, 2 is the pre-image of 4, 3 is the pre-image of 6 and 4 is the pre-image of 8. Now we come to the main topic. अब main topic जो class 12 का आ रहा है, types of function. Types of functions. टाइप्स ऑफ फंक्शन. ऐसे टाइप्स ऑफ फंक्शन क्लास 11 में बहुत बताया गया था उन लोगों को, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, वो सब तो क्लास 11 में है. क्लास 12 में जो मेन है डेटा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है 1-1 फंक्शन. 1-1 फंक्शन क्लास 12 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज है. सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन में दैट इज 1-1 फंक्शन. लेट ए एंड बी be two non-empty sets. If different element of A have different images in B, if different element of A के जितने भी एलिमेंट है, अगर सभी एलिमेंट का इमेज B में अलग अलग होगा, then we say that F is 1-1 function. 1-1 function is sometimes also known as the injective function.
So we see the example. Let A equal to 1, 2, 3, 4 and B equal to 2, 3, 4, 5, 6 and fx is defined as fx equal to x plus 2. So we see that 1 is associated to the 3. 1 is associated to 3 because you put f1. f1 equal to 1 plus 2, that is 3. 2 is associated to the 4. 3 is associated to the 5. 6 is associated to, 4 is associated to the 6. 1 is associated to 2. 2 is associated to the 4. 3 is associated to the 5 and 4 is associated to the 6. So this is the example of 1-1 function. Means different element of A has different images in B. A में जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सभी एलिमेंट का इमेज B में अलग अलग होगा तो ये जो फंक्शन है ये 1-1 फंक्शन है. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द सेट्स A and B आर फाइनाइट. अगर A और B फाइनाइट सेट है इस तरह से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन अगर A और B फाइनाइट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, we say that for 1-1 let x1, x2 belongs to A such that fx1 equal to fx2 imply that x1 equal to x2. अगर सेट फाइनाइट है तो कोई बात, अगर इनफाइनाइट होगा या किसी भी कंडीशन में अगर सेट है और 1-1 प्रूव करना मैथमेटिकली तो हम लेंगे लेट x1, x2 belongs to A such that fx1 equal to fx2 imply that x1 equal to x2, then f is 1-1. इस केस में ये भी मेथड है. इस केस में अगर प्रूव करना हो तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि इसमें f जो है ये 1-1 होगा. दूसरा मेथड है इफ x1 is not equal to x2 imply that fx1 is equal to fx2. If x1 is not equal to x2 imply that fx1 is not equal to fx2, then also f is 1-1. इस केस में भी f जो है 1-1 होगा. और ये क्लियर है. इफ x1 equal to x2 imply that fx1 equal to fx2. It is always true. It is always true. ये हमेशा करेक्ट होता है. इससे 1-1 का प्रूफ नहीं होगा. 1-1 प्रूफ करने की दो मेथड है. दो एलिमेंट ले लेंगे x1, x2 ए में ले लेंगे और दिखा देंगे उसका दोनों का इमेज सेम है और एलिमेंट को भी अगर सेम दिखा देंगे तो ये हो जाएगा f जो है 1-1 हो जाएगा. या अगर दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे उसका इमेज भी अगर डिफरेंट दिखा देंगे तब भी f 1-1 हो जाएगा. लेकिन अगर x1, x2 लेते हैं और इम्प्लाई द fx1, x2 ये चीज ऑलवेज ट्रू हमेशा ट्रू होता है. इसमें कोई इसमें नहीं, इससे ये नहीं प्रूव हुआ f जो है 1-1 है. सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज ऑन टू फंक्शन. पहले तुमको 1-1 फंक्शन कंसेप्ट दिए, अब दूसरा फंक्शन है ऑन टू फंक्शन. डेफिनेशन है लेट A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. If every element of B, ध्यान देना, if every element of B has at least one pre-image in A. यहाँ B कंडीशन है. B में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट का अगर कम से कम एटलीस्ट 1 प्री इमेज हो A में, B के सारे एलिमेंट कंडीशन यहाँ होना चाहिए. B का सारा एलिमेंट अगर इसमें सभी एलिमेंट का अगर यहाँ प्री इमेज होगा तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन ऑन टू होगा. एग्जाम्पल देखोगे लेट A इक्वल टू दिस वन. A सेट हैविंग एलिमेंट 0, 1, 2, 3 and B 0, 1, 4, 9 and fx is defined as fx equal to x square. So x, if you put in f0 that is 0 square, that is 0. So 0 is associated to the 0, 1 is associated to the 1, 2 is associated to the 4,
and 3 associated with 9. So we see that कि every element of B has the preimage in A. B में जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज है. तो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज नोन एज द ऑन टू फंक्शन. Another example, if A equal to this much, B equal to this much, and fx defined as x square, we see that the A set A having element -1, 0, 1, 2, B 0, 1, 4. So if you take f -1, so -1 that is -1 square, that is 1. So -1 is associated with the 1, 0 is associated with the 0, 1 is associated with the 1, 2 is associated with the 4. यहाँ देखो, ध्यान देखोगे कि B में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज है. ध्यान देना है, प्री इमेज. B के सारे एलिमेंट का प्री इमेज एम है. इसलिए जो एग्जांपल है ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है. द ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन. इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं. ऑन टू फंक्शन बोले या सर्जेक्टिव फंक्शन, दोनों फंक्शन सेम है. तो ये दो एग्जाम्पल हो गया ऑन टू का. ये भी ऑन टू का एग्जाम्पल है, ये भी ऑन टू है. लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है? दिस एग्जाम्पल इज 1 एंड ऑन टू बोथ. ये 1 में भी है, ऑन टू भी है. लेकिन ये एग्जाम्पल जो है 1 नहीं है, सिर्फ ऑन टू है. 1 क्यों नहीं है? कि -1 और 1 दोनों का एक ही इमेज 1 है. दैट्स वाई, मैंने 1 is the image of -1 as well as the 1. That's why this function is not 1 but it is onto. So those function which is 1 as well as onto, that function is also known as the bijective function. जो फंक्शन 1 onto दोनों होगा उसको कहेंगे वो जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है. तो फिर से इसको रिव्यू कर रहे हैं. हम 3 डेफिनेशन दिए. पहला दिए 1 का, दूसरा दिए ऑन टू का. तो 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और जो फंक्शन 1 और ऑन टू बोथ होगा उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं. अब अगर हाउ टू फाइंड, समटाइम्स है ना, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, अगर हमको किसी भी फंक्शन का हम शो करना ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो उसका हम रेंज फाइंड कर लेंगे. रेंज देखें, अगर इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल होता है देन वी से दैट कि f इज ऑन टू. तो कहेंगे f जो है वो ऑन टू है. किसी जैसे फंक्शन देखा होगा इसको, इसका अगर हम कहेंगे इसका रेंज निकालेंगे, तो इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज होगा 0, 1, 4. इसकी कोडोमेन जो है, कोडोमेन भी है 0, 1, 4. तो ये दोनों रेंज कोडोमेन सेम है, इसलिए फंक्शन जो है वो ऑन टू है. दूसरा मेथड ऑन टू चेक करने का है. दूसरा ऑन टू चेक करने का, सपोज कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू fx. एक फंक्शन है y इक्वल टू x एंड टू फाइंड द whether this function is on to or not. अगर ये शो करना है ये फंक्शन ऑन टू है नहीं, तो पहले कोई फंक्शन फर्स्ट स्टेप्स है, उसको पहला स्टेप्स है कि पुट fx इक्वल टू y. किसी कोई फंक्शन दिया हुआ है और तुमको प्रूव करना है वो फंक्शन ऑन टू है या नहीं, उसका स्टेप्स है fx इक्वल टू y पुट कर दोगे. सेकेंड स्टेप्स है ऑब्टेंड x इन टर्म्स ऑफ y. x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है. और थर्ड स्टेप है कि इफ ईच एलिमेंट y बिलोंग्स टू b इज एसोसिएटेड टू x बिलोंग्स टू a. मीन्स कह रहा है अगर इस सेट में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट का यहाँ अगर प्री इमेज है तो उससे हम कह रहे हैं वो फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा.